कारतूस. कारतूस मीन्स cartridge. एकांकी ड्रामा और वन एक्ट प्ले. एकांकीकार हबीब तनवीर. The writer is Habib Tanvir. Question answers. So the first four question answers, it is maukhik. You have to write the answers in one or two lines. कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? Why the camp of Colonel Kalinj was in the jungle? वजीर अली गोरखपुर के जंगलों में छिपा हुआ था. वजीर अली was hiding in the jungles of गोरखपुर. उसे गिरफ्तार करने के लिए कर्नल कालिंज ने जंगल में खेमा लगाया था. टू अरेस्ट वजीर अली, कर्नल कालिंज मेड द कैंप इन द फॉरेस्ट ऑफ गोरखपुर. वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? Why the soldiers were fed up of वजीर अली. अंग्रेजी फौज कई सालों से वजीर अली को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी. From many years, the army of the Britishers were trying to arrest वजीर अली. गिरफ्तार अरेस्ट. लेकिन वजीर अली उनके हाथ नहीं आ रहा था. But they were not able to catch वजीर अली. सिपाही लंबे समय से जंगल में पड़े पड़े तंग आ चुके थे. The soldiers were, for a long time they were in the jungle, so they were fed up or frustrated. कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? Why Colonel said that keep an eye on the rider. उस सुनसान जंगल में किसी अजनबी सवार को सवार का दिखाई देना शक पैदा करता है. So in that deserted jungle, unknown rider. So it was creating doubt. शक means doubt. इसलिए कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए कहा. That's why Colonel said keep an eye on the rider, ताकि पता चले कि वह कौन था और कहाँ जा रहा था. So that they can know that who is he and where he is going. सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? Why सवार said that it is very difficult to arrest वजीर अली. सवार वास्तव में स्वयं वजीर अली था. Actually the rider himself was वजीर अली. वह बहुत बहादुर था और अपने दुश्मनों को चुनौती दे रहा था. He was very brave and he was challenging his enemies. चुनौती means challenge. So mostly in the question paper, the questions are of 2 marks from Sparsh. So you have to, generally this very short answers they can ask as MCQ. And 25 to 30 words or bigger answers they can ask in the question paper for writing. The weightage of the question from Sparsh is 2 marks. लिखित प्रश्नोत्तर. Now the written question answers. वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? Why Colonel will remember Robin Hood when he listened to the stories of वजीर अली. अफसाने कहानी स्टोरी. रॉबिन हुड एक बहुत ही दिलेर व्यक्ति था. रॉबिन हुड was a very brave person. पुलिस और फौज के सामने ही अपने कारनामे दिखाकर वह बच निकलता था. He will also show the bravery in front of the army and he will leave. उसी प्रकार वजीर अली भी अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर आजाद घूम रहा था. So like that वजीर अली was treating the Britishers and he was roaming freely, independently. इसलिए कर्नल वजीर अली की तुलना रॉबिन हुड की बहादुरी से करता था. That's why कर्नल was comparing वजीर अली with the bravery of Robin Hood.
आंखों में धूल झोंकना एक मुहावरा है। आंखों में धूल झोंकना इज वन इडियम विच मीन्स धोखा देना, टू चीट. So this idioms can come in your exam. सआदत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? Who was सआदत अली? Why he thought that the birth of Wazir Ali is his death. पैदाइश means birth, मौत means death. सआदत अली अवध के नवाब आसिफुद्दौला का भाई था. सआदत अली was the brother of the king Asifuddaulah, which means he was the uncle of Wazir Ali. उसने सोचा था कि पुत्रहीन आसिफुद्दौला के बाद अवध तख्त उसे ही मिलेगा. He thought that Asifuddaulah is not having any son, so he will only become the next king. जब आसिफुद्दौला के बेटे वजीर अली का जन्म हुआ, so when वजीर अली took birth, उसके सपनों पर पानी फिर गया. So all his dreams were ended. वजीर अली की पैदाइश को वह अपनी मौत समझने लगा. He started thinking that the birth of Wazir Ali is my death. सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? So what was the aim of Colonel to make Saadat Ali sit on the throne of Awadh? सआदत अली ऐशो आराम पसंद आदमी था. सआदत अली was a man who loved all the luxuries. अवध के तख्त को पाने के लिए उसने अंग्रेजों से दोस्ती कर ली. So to become the king of Awadh, to get the throne of Awadh, he did friendship with the Britishers. अपनी मुमलिकत का आधा हिस्सा और 10 लाख नगद देकर उसने अंग्रेजों को खुश कर दिया. So he gave half of the kingdom to the Britishers, and also he gave 10 lakh rupees cash to the Britishers, and he made Britishers happy. Nagad means cash. वजीर अली को पकड़ने में भी अंग्रेजी फौज के साथ दे रहा था. He was also with Britishers to catch वजीर अली. इसलिए अंग्रेज उससे खुश थे. That's why Britishers were happy with सआदत अली और अवध पर उसे बैठाए रखना चाहते थे. And they wanted that सआदत अली should sit on the Awadh throne. कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? आफ्टर किलिंग द लॉयर of the East India Company, how Wazir Ali saved himself. कंपनी का वकील का कत्ल संगीन जुर्म था. Killing the company's lawyer was a serious crime. अंग्रेजों से बचकर वजीर अली अपने कुछ वफादार साथियों के साथ आजमगढ़ की ओर भाग निकला. So Wazir Ali ran away through Azamgarh with his loyal companions. आजमगढ़ के शासकों ने उसे घाघरा तक पहुंचा दिया. द रूलर्स ऑफ आजमगढ़ हेल्प हिम टू रीच टिल घाघरा. घाघरा इज द नेम ऑफ द प्लेस. उसके बाद से वजीर अली अपने साथियों के साथ इन गोरखपुर के जंगलों में छिपा हुआ था. सो आफ्टर दैट वजीर अली वाज हाइडिंग इन द जंगल्स ऑफ गोरखपुर विद हिज कंपेनियंस. सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? When the writer left, why the colonel was surprised? हक्का पक्का रह जाना is also one idiom which means आश्चर्यचकित रह जाना. वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल अपनी पूरी फौज के साथ लंबे समय से उस जंगल में खेमा लगाए बैठा था. To arrest वजीर अली from a long time, Colonel was there in the jungles with the whole army. वजीर अली एक साधारण सवार के रूप में न केवल कर्नल के खेमे में घुस आया. As an ordinary horse rider, वजीर अली came inside the camp of Colonel. Not only this, बल्कि स्वयं कर्नल से उसने 10 कारतूस भी मांग लिए थे. He also asked 10 cartridges from the Colonel.
जब कर्नल को पता चला कि वह सवार स्वयं वजीर अली था, when colonel came to know that the rider himself was वजीर अली, तो उसकी दिलेरी के सामने वह हक्का बक्का रह गया. So by seeing his bravery, he was surprised. लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? Why lieutenant felt that all over India there's a wave against Britishers. लहर means brave, wave. कर्नल कॉलिंज ने लेफ्टिनेंट को बताया कि वजीर अली ने अफगानिस्तान के शाह-ए-जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी थी. कर्नल कॉलिंज said to lieutenant that Wazir Ali invited the ruler of Afghanistan to attack on India. Dawat means invitation, हमला means attack. उससे पहले मैसूर के टीपू सुल्तान ने भी अफगानिस्तान के शाह-ए-जमा को यह निमंत्रण दिया था. And before that, टीपू सुल्तान also invited the ruler of Afghanistan. उधर बंगाल के नवाब के रिश्ते के एक भाई शमशुद्दौला ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अफगान के शाह-ए-जमा का साथ देने की बात की थी. एंड द कजिन ब्रदर ऑफ रूलर ऑफ बंगाल, सो ही ऑल्सो invited cousin brother Shamshuddaulah also invited the ruler of Afghanistan. इस प्रकार जब लेफ्टिनेंट ने देखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी हुकूमत का विरोध हो रहा है, सो व्हेन लेफ्टिनेंट सॉ दैट इन द different parts of India the people are raising their voice against the British rule, तो उसे लगा कि सारे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ गई है. सो ही थॉट दैट इन ऑल ओवर इंडिया देयर इज अ वेव रनिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. So the Wazir Ali, Tipu Sultan, all were inviting the Afghanistan ruler so that they can become strong and they can fight with the Britishers and then can uh, throw out the Britishers from India. वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? Why वजीर अली killed the company's lawyer? वजीर अली ने अंग्रेजों ने वजीर अली को अवध के तख्त से हटाकर बनारस भेज दिया था. ब्रिटिशर्स रिमूव्ड वजीर अली फ्रॉम द थ्रोन ऑफ अवध एंड दे सेंड हिम टू बनारस, और 3 लाख रुपया उसका सालाना वजीफा तय कर दिया. एंड दे डिसाइडेड द एनुअल सैलरी 3 लाख रुपीस फॉर वजीर अली. वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भर गई थी. Wazir Ali was having lot of hatred for Britishers. नफरत means hatred. इस पर जब कंपनी के गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता में तबादला किया तो उसने बनारस में, and then when the governor was asking Wazir Ali to come to Calcutta, तो उसने बनारस में कंपनी के वकील से इसकी शिकायत की. He complained about this to the lawyer in Banaras because Wazir Ali was also in Banaras that time. वकील ने उल्टे उसे ही बुरा भला कहा और उसकी शिकायत की कोई परवाह न की. वकील अली didn't bother about the complaint and he started telling wrong to वजीर अली. वजीर अली तो पहले ही अंग्रेजों से नफरत करता था. ऑलरेडी वजीर अली was having hatred for the Britishers. यह अपमान उसे सहन नहीं हुआ. So he was not able to tolerate this insult. और उसने क्रोध में भरकर with anger अपने खंजर से कंपनी के वकील का वही काम तमाम कर दिया. अपने वेपन से there itself he killed the company's lawyer. काम तमाम करना is also one मुहावरा, idiom, which means कत्ल करना, मार डालना, to kill. सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? हाउ द राइटर took the कारतूस cartridge from the कर्नल. वजीर अली सवार बनकर अकेले ही अंग्रेजों के तंबू में गया. As a rider, वजीर अली
went alone in the tent of the Britishers, और कर्नल को ऐसे दिखाया, and he showed like that as if he is against वजीर अली. खिलाफ मीन्स अगेंस्ट. उसने कर्नल को कहा, he said to कर्नल, उसे वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कुछ कारतूस चाहिए. He want few cartridges to arrest वजीर अली. कर्नल को लगा कि वह भी वजीर अली को पकड़ना चाहता है. कर्नल thought that he also want that वजीर अली should get arrested. इसलिए कर्नल ने सवार को 10 कारतूस दे दिए. दैट्स व्हाई कर्नल गिव 10 cartridges to वजीर अली. इस तरह सवार ने कर्नल से कारतूस हासिल किए. सो लाइक दिस द राइटर took the cartridge from the colonel. वजीर अली एक जांबाज सिपाही था. कैसे? स्पष्ट कीजिए. वजीर अली वॉज अ ब्रेव सोल्जर. हाउ? एक्सप्लेन. वजीर अली को अंग्रेजों ने उनके नवाब पद से हटा दिया था. ब्रिटिशर्स रिमूव्ड वजीर अली फ्रॉम द पोस्ट ऑफ किंग, और बनारस भेज दिया था. एंड दे सेंड वजीर अली टू बनारस. बनारस इज द नेम ऑफ द सिटी. वजीफे के लिए जो रकम दी गई थी, द अमाउंट विच दे वर गिविंग एज सैलरी, उसने उसमें अड़चन डालने के लिए, उसमें हर्डल्स क्रिएट करने के लिए उसे कलकत्ता बुलाया जा रहा था. दे वर कॉलिंग हिम टू कलकत्ता. जब इसकी शिकायत वकील से करने गया, व्हेन ही वेंट टू कंप्लेन अबाउट दिस टू द लॉयर, तो वकील उल्टा उसी को बुरा भला कहने लगा. सो द लॉयर स्टार्टेड सेइंग बैड वर्ड्स टू वजीर अली. वकील के ऐसे व्यवहार पर उसे गुस्सा आ गया. वजीर अली बिकेम एंग्री विद दिस बिहेवियर ऑफ लॉयर, और उसने वकील की हत्या कर दी. ही किल्ड द लॉयर. महीनों अंग्रेजों को जंगलों में दौड़ाता रहा. फॉर मंथ्स द ब्रिटिशर्स वेर बिहाइंड वजीर अली. फिर भी, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू कैच हिम. अकेले ही अंग्रेजों के तंबू में कर्नल से मिलने चला गया. अलोन वजीर अली वेंट इनसाइड द कैंप टू मीट द कर्नल, एंड ही ऑल्सो टुक द 10 cartridges. और एंड व्हेन ही वाज गोइंग, जाते जाते अपना सही नाम भी बता दिया. ही सेड हिज करेक्ट नेम आल्सो. इतने जोखिम भरे कारनामे, द वर्क फुल ऑफ डेंजर, इट प्रूव, ये सिद्ध होता है कि वजीर अली एक जांबाज सिपाही था. वजीर अली वाज अ ब्रेव सोल्जर. सो नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस लाइंस. मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम. मुट्ठी भर, मुट्ठी मीन्स फिस्ट, which means few loyal persons were there with वजीर अली, but they were very brave. वजीर अली ने जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, when वजीर अली raised his voice against the Britishers, बगावत is rebel, तो उसके कुछ गिने चुने सैनिक, few loyal soldiers, साथियों, we can say friends और companion, उसका साथ दिया. they were with वजीर अली. वे भी उसी की तरह बहुत दिलेर और जाबाज थे. दे वर ऑल्सो वेरी ब्रेव लाइक वजीर अली, और फौज को मात दे रहे थे. एंड दे वर डिफीटिंग द आर्मी. मात देना मीन्स डिफीट करना. फौज इज आर्मी. दैट्स व्हाई इट इज सेड लाइक दैट, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम. गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला आ रहा है. सो द डस्ट इज flying as if the whole group is coming. काफिला means समूह, group. मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है. बट आई कैन सी ओनली वन राइडर. जब सिपाही ने कर्नल को कहा कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है, when the soldier said to the colonel that from a distance we can see that the dust is rising or तो कर्नल ने तुरंत सिपाही से कहा, इमीडिएटली कर्नल सेड टू द सोल्जर, कि वह दूसरे सिपाहियों से तैयार रहने को के लिए गए. They tell the other soldiers to be ready. लेफ्टिनेंट खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त था. लेफ्टिनेंट was busy seeing outside the window. व्यस्त means busy, बाहर outside. उस सुनसान रात में, in the deserted night, वजीर अली इतनी तेज रफ्तार से घोड़े पर आया. वजीर अली was coming very fast on the horse, और इतनी धूल उड़ रही थी, and so much dust was there, कि और कह धूल उड़ रही थी,
और कहने लगा कि लग रहा था जैसे पूरा एक काफिला आ रहा है, सो इट सीम्स एज इफ द होल ग्रुप इज कमिंग।